नेशनल लाइब्रेरी में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में वहां पर उपस्थित थे राज्यपाल रवि नारायण रवि, किशोर मकवाना, पार्थो विश्वास और डॉक्टर स्वरूप घोष। इन सभी ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र के ऊपर अपने अपने विचार रखे। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं सदीनामा न्यूज, और यहाँ पर इन चारों के वक्तव्य भी सुन सकते हैं। दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापं दीप ज्योति नमस्तुते करतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदस्तुते। ओम felicitate our chief executive আমরা তাকে উত্তরী দিয়ে ন্যাশনাল কমিশন ফর সিভিল Honorable Member of National Commission for Civil Drafts শ্রী পার্থ বিশ্বাসকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বিদ্যুৎ প্রসাদ মন্ডল, আমাদের তপশিলি উত্থানের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা গোসাই, সুধানন্দ গোসাই, রমেশ গোসাই, সবিতা হালদার, সুনিতা হালদার, সন্দীপ। আপনারা পরপর পাঁচজন আমাদের মঞ্চের বাঁদিকে চলে আসুন। जी বর্তমান চেয়ারপারসন ফর মানব কল্যাণে নিজেকে ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় রাখে। 2001 সালে ব্যারাকপুর মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে 2004 সালে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রত হন। দীর্ঘ 25 বছরের শিক্ষাব্রতী জীবিত পর্বতারোহণের অর্জুনগামী জনপ্রিয় শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস মহাশয়, যিনি বিভিন্ন প্রান্তে মোট 46টি পর্বতশৃঙ্গের আরোহণ করে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে স্থাপন করে নিজের তথা ভারত মাতার নাম বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করেছে। মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, ক্যানিং, তালদির বাসিন্দা রবীন বলদে মহাশয় বর্তমানে পূর্ব রেলের কর্মী হলেও তার জীবন যুদ্ধ আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত। ছোট বয়সে বাবাকে হারিয়ে 5 ভাইকে নিয়ে মা শ্রদ্ধেয়া প্রতিষ্ঠিত করতে সেবাবতী গুরু গৌতম ব্রহ্ম 2026 সালে তপশিলি রত্ন প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম গুরুজন। দীর্ঘ 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে সমাজসেবী, সেবাবী, মা ফুলমতি ও বাবা সন্ন্যাসীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি বাস করেন উত্তর 24 পরগনার মছলন্দপুরে। অবিভক্ত বাংলায় তার শিকড় গ্রথিত। খুলনা জেলার রংপুর গ্রামে ঠাকুরদা ভোলানাথের বই, যেটি ব্রেল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা ভারত উত্থান পত্রিকার উন্মোচন করলাম, ব্রেল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তার অলঙ্কৃত পুস্তক এবং একটি ছবি তার হাতে আঁকা সেটি তুলে দিচ্ছেন গভর্নরের হাতে। এই মুহূর্তটিকে আমরা ধরে आज की सभा हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम आदर से बाबा साहब कहते हैं, उनकी 135वें जयंती के अवसर पर जो कमीशन ने कार्यक्रम शुरू किया है, उस कार्यक्रम का एक अंग आज का कार्यक्रम है। सर्वप्रथम
मैं बाबा साहब को अपने हृदय से बड़ी विनम्रता के साथ उनको नमन करता हूं और कृतज्ञता के साथ इस बात के लिए कि उन्होंने हमें ऐसा एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट दिया, संविधान, भारतीय संविधान, जो इतने विशाल देश को, इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश, इसको एक साथ लेकर के हम कैसे आगे बढ़े, यह एक अविश्वसनीय कार्य जो उन्होंने किया हमारे लिए। हम सब सारे भारतवासी उनके प्रति सदा सदा उनके ऋणी रहेंगे और उनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। নয়, দুষ্কৃতীদের বর্বর অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে যারা এই তপশিলি সমাজের কাজ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে করছেন, যেখানে তপশিলি উত্থানের তপশিলি বন্ধু পাঠশালা চলে, ছোট ছোট বাচ্চারা যেখানে প্রতিনিয়ত নিজেদের ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করার জন্য সেই পাঠশালায় মায়েদের হাত ধরে একেবারে ছোট্ট ছোট্ট সন্তান যারা এখনো তথাকথিত পড়াশোনার সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করেননি, তথাপি সেই তপশিলি বন্ধু পাঠশালায় যারা আসছেন এবং সেই পাঠশালা যারা চালাচ্ছেন। सर, आज ही अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो आदरणीय चेयरमैन हैं वो आए थे, कमेटी में जो मेंबर्स है, सदस्य है, वो भी आए थे और सभी का सहायता से ये प्रोग्राम सुचारू रूप से अपने जो हम सभी मिल के ये प्रोग्राम में सहायता किया और सुचारू रूप से प्रोग्राम हुआ। मकायस की ओर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, जहां मैं निर्देशक हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये संस्था है, हम लोग भी सहायता किया और ये प्रोग्राम हुआ। और वार्ता यही था कि जाति, वर्ण, धर्म, ये भेदभाव से उठ के हम सभी मिलके भारत माँ को सेवा करें और भारत माँ का समृद्धि की ओर काम करें और एक ही हिंदू समाज बनाएं। जाति भेद से आज़ादी के बाद 80 साल हो गया, अभी भी अगर ये कहना पड़ता है कि ये किस जाति का है, वो किस जाति का है, ये तो दुख होगा। आप अगर पूछिएगा, मैं बोलूँगा मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदू समाज से जुड़े हुए हूँ। अगर आप पूछे तो मैं किस जाति का और हमको कहना पड़ा कि मैं कायस्थ हूँ, ऐसे बटा कटा हिंदू समाज आपको चाहिए क्या? आपको तो एक हिंदू समाज चाहिए जो समरसता से विश्वास करता है। स्वामी विवेकानंद जैसे कहा था कि ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी, हम सभी एक है, भाई है। तो यही संदेश था। बाबा साहब अम्बेडकर जो सशक्त भारत का सपना देखा था, उसका स्मृतिचारण हुआ। समरसता का जो सपना देखा था, उसका स्मृतिचारण हुआ। ऐसे हम लोग ये भी कहा कि बंगाल में ऐसे जाति भेद का उतना प्रॉब्लम नहीं है। हमारे समाज में चैतन्य, श्री राम कृष्ण का जब प्रभाव है, उससे उतना जाति भेद हमारे समाज में नहीं है। लेकिन सारा भारत में ये समरसता का जो वार्ता है ये जाए और हम सभी मिलके भारत माँ का सेवा कर सके। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हम सभी को तो मिलना है एक साथ। पहले तो घर में हम सभी मिले, तब तो विश्व को जो रास्ता है, जो जैसे चलना है, जो पथ निर्देश है, वो दे सकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम तो है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का जो वार्ता है वो तो आत्मस्थ करे और उससे मिलके सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी भाव हमें लेना चाहिए। तो हिंदू समाज में हम मिलजुल के जो है रहे हैं, सदियों सालों से रहे हैं, हमारे विचार एक है, भगवान एक है, एक ही ईश्वर को हम लोग पूजते हैं। तो हमारा अंदर भेद क्यों? हमारे अंदर भेद नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण भी हमारे भाई है, चंडाल भी हमारे भाई है।
सर आपका शुभ नाम? हमारे नाम डॉक्टर स्वरूप प्रसाद घोष है। मैं निर्देशक हूँ मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज का। मैं कहा कि ये भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय का एक विभाग है। धन्यवाद सर। नमस्कार। अब सभी आए हैं इसके लिए नमस्कार। अब जो जर्नलिस्ट आए हैं सभी को नमस्कार, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कवर किया। आप लोग तो सभी प्रोग्राम का प्राण केंद्र में रहते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो ये सभी समाज में जाएगा कैसे? ये वार्ता, ये सूचना आप लोग ही तो समाज के विभिन्न द्वार में इसको बोलते हैं, पहुंचा देते हैं, तो आपको तो नमस्कार धन्यवाद करना ही चाहिए। धन्यवाद सर। है वो बाबा साहब आम्बेडकर की जो जन्म जयंती है उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है। खास करके बाबा साहब आम्बेडकर का राष्ट्रीय विकास में जो उनके दर्शन था, उनका जो विचार था, उस विषय को लेकर अलग अलग माध्यम से ये विचार व्यक्त होने वाला है। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो देश के डेवलपमेंट के बारे में जो सोचा था, ये विचार लोगों के बीच जाना चाहिए, क्योंकि आज भी बाबा साहब आम्बेडकर का जो पूरा जीवन का जो मंत्र था वो था राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो ये राष्ट्र के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में विचार उनके थे। खास करके हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने विकसित भारत का जो मंत्र दिया है 2047 का, वो मंत्र साकार करने में बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार है वो बहुत मूल्यवान है। तो आज भी ये जो बाबा साहब आम्बेडकर के विचार हैं वो लोगों के बीच नहीं आए। खास करके उन्होंने उद्योग के बारे में, शिक्षा के बारे में, हमारी जो नदियां है उस पर ज्यादा से ज्यादा डैम बना के हम कैसे देश के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं, कृषि के बारे में, ये सारे जो विचार हैं बाबा साहब आम्बेडकर के, वो लोगों के बीच जाना चाहिए। और आज का जो कार्यक्रम है मुख्यतः वही है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो दर्शन है वो लोगों के बीच आए। सर देश भर में आपने ऐसे कार्यक्रम कितने कर चुके हैं? हर ये जो 14 अप्रैल की जो जन्म जयंती है उस समय हम कार्यक्रम करते हैं। अभी हमने दिल्ली में जो भारत मंडपम है, सबसे विशाल भव्य दिव्य ऐसा जो सभागृह है, उसमें 3000 लोगों का हमने कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में देश भर से लोग आए। और वहां पर भी बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो देश के उत्थान के बारे में जो विचार है, आर्थिक दर्शन है उनका, सामाजिक दर्शन है, शैक्षिक दर्शन है, वो सभी विचार हमने वहां पर प्रस्तुत किए। सर योगेंद्रनाथ मंडल के योगदान के बारे में बाबा साहब के लिए आप कितना बता सकोगे? मैं खास करके बाबा साहब आम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में बता सकता हूँ। जोगेंद्रनाथ मंडल थे, उन्होंने जिस विचार को लेकर वो पाकिस्तान चले गए थे और वहां पर जिस प्रकार के उन पर अत्याचार हुए और उनको भागकर यहाँ भारत में शरण लेनी पड़ी, तो ये हमें एक मैसेज देता है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है। चलिए सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। किशोर मकवाणा, मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चेयरमैन।